Let us see the next question. Consider the balance sheet of Maya Limited at 31st of December and the figures are in thousand term. The company has received a large order and anticipates the need to go to its bank, highlight the portion to increase its borrowing. तो कंपनी ऐसा एंटिसिपेट कर रहा है कि हमको एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है, तो अभी हमको पैसे का जरूरत पड़ेगा. That is the reason, so the company is considering to forecast its cash requirement. As a result, it has to forecast its cash requirement for January, for February, and for March. Typically, the company collects 20% of the sales in the month of sales, 70% in the subsequent month, and 10% in the second month after the sales. Highlight the portion, all the sales are credit sales. बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है जिसमें कैश बैलेंस हमको दे रखा है इट इज 50,000, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है द फिगर्स आर इन थाउजेंड. अकाउंट्स रिसीवेबल 5,30,000 यानी कि हमको डेटर्स दे रखा है. इन्वेंटरी 5,45,000 यानी कि स्टॉक दे रखा है. नेट फिक्स असेट दैट इज फिक्स असेट इज प्रोवाइडेड टू अस. फिर लायबिलिटी साइड पे अकाउंट्स पेएबल यानी कि क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन दे रखा है. बैंक लोन इज एन अमाउंट ऑफ 4 lakhs. अक्रूवल का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,12,000. लॉन्ग टर्म डेट यानी डेट फाइनेंसिंग. कॉमन स्टॉक, फ्रेंड्स कॉमन स्टॉक का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल. ये स्टॉक का मतलब होता है सिक्योरिटी. तो जैसे आपने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक का मतलब होता है सिक्योरिटी. कॉमन का मतलब होता है इक्वल, यानी क्या हुआ दैट्स इट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल. ऐसा हमको दे रखा है. देन रिटेन अर्निंग का मतलब होता है P&L अकाउंट का बैलेंस. टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी हमको दे रखा है. So this is the way the liability side of the balance sheet is given and asset side of the balance sheet is given to us. ऐसा हमको दे रखा है. Purchase of the raw material are made in the month prior to the sales and amount to 60% of the sales in subsequent month. Payment for these purchases occur in the month after the purchase. Labor costs including overtime are expected to be 1,50,000 in January, 2 lakhs in February, and 1,60,000 in March. Selling, administrative, tax, and other cash expenses are expected to be 1 lakh rupee per month for January through March. यानी कि जनवरी महीने का, फरवरी महीने का और मार्च महीने का हर महीने 1 लाख. Actual sales in November and December and projected sales for January through April are as follows. Again the figures are in thousand. तो नवंबर का सेल्स है 5 लाख, दिसंबर का है 6 लाख, जनवरी का 6 लाख, फरवरी का 10 लाख, मार्च 6,50,000 and April again 7,50,000. On the basis of this information, prepare a cash budget for the month of January, February and March and so on. फिर आगे का इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. I request all of you to go through the question and we are going to make the calculation of the first part of the question जिसमें हमको 3 महीने का कैश बजट बनाने का है. Please go through the question. I want somebody of you to tell me in the chat box that what is the payment for purchase of raw material in the month of February. मुझे आपसे ये जानना है कि what is the payment for purchase of raw material
in the month of February? Please write your answer in the chat box. ऐसा करके हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं. Let us have understanding that से आंसर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. I request all of you to write down working note along with me. मैं आपको साथ साथ में समझाता जाता हूँ. Write down working note number 1, calculation of purchase and payment of, that is payment for raw material. फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट हमको थोड़ा वर्किंग नोट एग्जॉस्टिव हमेशा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आगे पीछे का इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो नवंबर से लेके अप्रैल तक का हम लोग बनाएंगे. सो कॉलम नंबर 1 इज मंथ. इन दैट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल. That is the way we are preparing the working note. फिर सेल्स जो हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, इन दैट से यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड, इट हैज बीन गिवन टू अस डायरेक्टली इन द क्वेश्चन. तो सेल्स को कॉपी पेस्ट पहले लिख देते हैं. दैट इज जैसे कि सेल्स हमको दे रखा है, नवंबर का है 500, दिसंबर का है 600, जनवरी का है अगेन 600, फरवरी का है 1000, मार्च का है 650 और अप्रैल का है 750. ऐसा करके हम लोग सेल्स कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद 60% ऑफ सेल्स. 60% क्यों कैलकुलेट किया जाता है? आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू इन 2 मिनट्स. आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो दैट से कहीं पे हमको थोड़ा 60% का रेफरेंस दे रखा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. पर वो बेसिकली हमको कैसे हेल्पफुल होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. तो राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. 500 into 60%, that comes to 300. 600 into 60%, that comes to 360. Again same value 360. फिर 1000 का 60%, that comes to 600. 650 का 6%, that comes to 390. और 750 का 6%, that comes to 450. ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले 60% ऑफ द सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद मैं 2 और कॉलम बना रहा हूं, परचेस और पेमेंट फॉर परचेस. इसको भी कैसे फिलअप करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. नाउ मैं अभी आपको सबसे पहले परचेस समझाता हूं, पेमेंट नहीं, मैं परचेस समझाता हूं. क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल आर मेड इन द मंथ प्रायर टू द सेल्स. यानी रॉ मटेरियल का खरीदी, परचेस कब किया जाता है? प्रायर टू द सेल्स. यानी जो महीने में हम लोग गुड्स सेल करने वाले हैं उसके अगले महीने में हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं. कितना परचेस करते हो? इट इज लाइक अमाउंट टू 60% ऑफ सेल्स इन सब्सिक्वेंट मंथ. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर वी आर परचेसिंग द रॉ मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द दिसंबर. और दिसंबर का हमारा सेल्स कितना है? 600. उसका 60% हम लोग कब खरीदेंगे? इन द मंथ ऑफ नवंबर, दैट इज 360. दिसंबर में कितना परचेस करेंगे? इक्वल टू 60% ऑफ द सेल्स ऑफ जनवरी. यानी क्या होगा? जनवरी मंथ का जो सेल्स है उसका 60% हम लोग दिसंबर में खरीदेंगे. जनवरी में कितना खरीदेंगे? अगेन 60% ऑफ द सेल्स ऑफ फरवरी. ऐसा करके हमको सबसे पहले परचेस लिखना है. एक बार हमारा परचेस लिखने का हो जाए उसके बाद पेमेंट कैसे लिखने का है वो मैं आपको समझाता हूं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन सो द परचेस वैल्यू. देखो हमारे पास अप्रैल के परचेस का इंफॉर्मेशन नहीं है तो जाने दो,
उसका कोई जरूरत नहीं होगा, इसलिए वो नहीं दे रखा है। दिस इज द वे वी कंप्यूट द परचेज। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, पेमेंट फॉर दीज परचेसेस अकर इन द मंथ आफ्टर द परचेज। इसका मतलब ये है कि एवरेज पेमेंट पीरियड है 1 महीना। जो महीने में हमने रॉ मटेरियल खरीदा है उसके नेक्स्ट मंथ उसका पेमेंट किया जाता है। तो जो हमने नवंबर में खरीदा उसका पेमेंट हम लोग करेंगे दिसंबर में। पर दिसंबर के पेमेंट से अपने को क्या मतलब है, तो जाने दो। जो हमने दिसंबर में खरीदा उसका पेमेंट किया जाएगा जनवरी में, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 3,60,000। जो हमने जनवरी में खरीदा उसका पेमेंट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ फरवरी, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 600। जो हमने फरवरी में खरीदा उसका पेमेंट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 3,90,000। जो हमने मार्च में खरीदा उसका पेमेंट किया जाएगा अप्रैल में, एंड अगेन वी आर नॉट कंसर्न विद द सेम। हमको तो सिर्फ इतना ही मतलब है, दैट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, in the month of February, and in the month of March. What is the payment that say we have made for purchase of raw material? तो ये इसका आंसर है। और ऑफ कोर्स मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है 6 lakhs, that is 600। नेक्स्ट राइट डाउन, प्रिपरेशन ऑफ मंथली कैश बजट। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 महीने का कैश बजट बनाएंगे, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सिर्फ ये 3 महीने का ही हमको कैश बजट बनाने का है। वी विल स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट दिस इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर। तो 1st ऑफ जनवरी को ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, वेरी सिंपल, इट इज द कैश बैलेंस विच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, दैट इज एन अमाउंट ऑफ ₹50,50,000। तो हम लोग शुरू करेंगे 50,000 से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे उन्होंने हमको कलेक्शन का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल्स। जो सेल्स है वो 3 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट होगा, दैट इज 20 20%, 70 70% एंड 10 10%। ऐसा करके 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट होगा। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग आंसर। सारे स्टूडेंट्स अभी ध्यान दीजिए प्लीज। देखो जनवरी मंथ का सेल्स कितना दे रखा है फ्रेंड्स हमको, 600। उसका 20% हमको कब मिलेगा, सेम मंथ में मिल जाएगा, ऐसा दे रखा। 20% ऑफ द सेल्स इन द मंथ ऑफ सेल्स। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, लिसन केयरफुली, 600 का 20% दैट इज 120। तो जनवरी मंथ के कॉलम में और 20% के सामने हम लोग लिखेंगे 70% इन द सब्सिक्वेंट मंथ। यानी क्या किया जाएगा, फरवरी मंथ के कॉलम में और 70% के सामने। दैट इज 420। और 10% कब मिलेगा, मार्च में। तो मार्च मंथ के कॉलम में और 10% के सामने, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 60। ऐसा करके हम लोग कलेक्शन लिखेंगे ऑफ द जनवरी मंथ। नेक्स्ट, फरवरी महीने का हमको सेल्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, फरवरी महीने का सेल्स हमको दे रखा है 1000। उसका 20% हमको कब मिलेगा, फरवरी महीने में। तो फरवरी महीने के कॉलम में और 20% के सामने, 1000 into 20%, that comes to 200।
70% हमको मार्च में मिलेगा, तो मार्च मंथ के कॉलम में और 70% के सामने। और बाकी का हमको अप्रैल में मिलेगा। तो जो भी हमारा कलेक्शन अप्रैल में है उससे हमको मतलब नहीं है। वी आर कंसर्न दैट से इन 3 महीने में हमारा सेल्स कितना है। मार्च मंथ का हमारा सेल्स कितना है, इट इज 650। उसका 20% हमको सेम मंथ में मिल जाएगा, तो 650 उसका 20%, यानी क्या होगा 130। बाकी का अप्रैल और मई में विद दैट वी आर नॉट कंसर्न। अच्छा, जनवरी के पहले कौन सा महीना है, दिसंबर। दिसंबर मंथ का सेल्स हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 600 दे रखा है। ये 600 का 20% हमको दिसंबर में मिल चुका होगा, 70% जनवरी में मिलेगा, तो 70% के सामने और जनवरी मंथ के कॉलम में। दैट इज 420। और बाकी का 10% हमको फरवरी में मिलेगा, तो 600 इंटू 10%, दैट कम्स टू 60। दिसंबर के आगे है नवंबर। नवंबर का जो भी सेल्स है उसका 20% नवंबर में मिल चुका होगा, 70% दिसंबर में मिल चुका होगा, और बाकी का जो 10% बचा वो हमको जनवरी में मिलेगा। सो 500 इंटू 10% दैट कम्स टू 5050। ऐसा करके हमको कलेक्शन लिखना है फॉर द जनवरी टू मार्च। उसके बाद फ्रेंड्स पेमेंट टू द क्रेडिटर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, 360, 600 and 390. This is what we understand is the payment to creditors for purchase of raw material. उसके बाद हमको सिंपल दो और एडजस्टमेंट दे रखे हैं, एक तो लेबर के कॉस्ट का दे रखा है और दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस का दे रखा है। यू कैन सी दैट से 150, 200, 160 ये लेबर का खर्चा है और ये 1 लाख रुपए हर महीने है। सो लेबर कॉस्ट in the month of January it is 150, in the month of February it is 200, and in the month of March it is 160. उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, हर महीने का है 1 लाख। सो नाउ वी कैन कंप्यूट द क्लोजिंग बैलेंसेस। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक बोरोइंग का एडजस्टमेंट दे रखा है, वो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात है, उसको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के साथ हमको मर्ज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे ऑन मंथली बेसिस। जैसे कि जनवरी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा फ्रेंड्स, यूज अ कैलकुलेटर अलॉन्ग विथ मी, 5050 प्लस 120 प्लस 420 प्लस 50 माइनस 360 माइनस 150 माइनस 100, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 3030। ये जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है, दैट विल बिकम ओपनिंग ऑफ फरवरी। 30 प्लस 200 प्लस 420 प्लस 60 माइनस 600 minus 200 minus 100, it comes to negative 190. This is the closing balance of February month, which is opening of March. Plus 130 plus 700 plus 60 minus 390 minus 160 minus 100, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 50,000 रुपये। ऐसा करके हमको सिंपली कैश बजट बनाने का है जनवरी टू मार्च का।
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया. नाउ लेट अस रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, डिटरमाइन यानी कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशनल बैंक बोरोइंग. है ना, अभी ऑलरेडी आपका बैंक लोन तो चल ही रहा है, यू कैन सी अभी आपका बैंक लोन है ऑलरेडी 4 लाख का. तो एडिशनल कितना बोरो करेंगे, एडिशनल बैंक बोरोइंग नेसेसरी टू मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ 50,000 एट ऑल टाइम्स. यानी क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि हमको कितना मंथली बोरो करना पड़ेगा या तो हम लोग कितना मंथली रीपे करेंगे, सो दैट से एवरी मंथ एंड वी हैव द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 50,000. दैट इज अ क्वेश्चन. सो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है दैट व्हाट इज द अमाउंट टू बी बोरोड और व्हाट इज द अमाउंट टू बी रीपेड ऑन मंथली बेसिस, सो दैट द क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इज 50,000. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि फेब्रुआरी मंथ में, कौन से मंथ में, फेब्रुआरी मंथ में कितना बोरो करेंगे या कितना रीपे करेंगे. चलो डन आंसर. कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग स्लैश रीपेमेंट on monthly basis, comma, so that closing balance is rupees 50,000. तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना बोरो करेंगे या रीपे करेंगे ऑन मंथली बेसिस, so that the closing balance at the end of every month is 50,000. So January, February and March हम लोग शुरू करेंगे ओपनिंग बैलेंस से, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 रुपए. फिर हम लोग लिखेंगे रिसीप्ट. तो रिसीप्ट कितना है जनवरी मंथ का, यूज अ कैलकुलेटर. 120, 420 एंड 5050, इन तीनों का टोटल हमारा रिसीप्ट है. सो यूज अ कैलकुलेटर. इट इज 120 प्लस 420 प्लस 50, दैट कम्स टू 590. वैसा के वैसा हम लोग फरवरी का लिखेंगे, मार्च का लिखेंगे. फिर हम लोग लिखेंगे पेमेंट्स. अगेन फॉर दिस 3 मंथ्स, जैसे कि पेमेंट कितना है 360 प्लस 150 प्लस 100, सो टोटल आता है 610. दैट इज 360 प्लस 150 प्लस 100. उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट. जो बोरो है रीपे, उसका एडजस्टमेंट करने के पहले क्या बैलेंस है वो लिखेंगे. उसके बाद वी विल मेंशन बोरोइंग अगर जरूरत पड़े तो, रीपेमेंट अगर हमारे पास एक्सेस फंड्स है तो, और लास्ट में हमारा आएगा रिवाइज द क्लोजिंग बैलेंस. This is the way we are required to prepare the table. I want you to complete the table like this. So now we can say 50 plus 590 minus 610. तो क्लोजिंग बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट आता है 30,000. हमको चाहिए 50,000. So of course we have to borrow, and we have to borrow an amount of 20,000. As this 20,000 is calculated as balancing figure, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स कर देता हूँ, ऐसा मैं सर्कल करता हूँ. तो क्या रिवीजन में अपने को आइडिया रहेगा कि वो बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट किया था.
तो फरवरी मंथ का ओपनिंग हो गया 50,000। फरवरी मंथ का कलेक्शन कितना है 200 प्लस 420 प्लस 60 है ना, इन तीनों का टोटल दैट कम्स टू एन अमाउंट ऑफ 680। So we understand that say it is 200 plus 420 plus 60, तो इन तीनों का टोटल कितना आएगा 680। पेमेंट्स का टोटल करेंगे इट इज 6 2 एंड 1, यानी क्या होगा 600 प्लस 200 प्लस 100 दैट कम्स टू 900। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिवाइज्ड क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 50 प्लस 680 माइनस 900 दैट कम्स टू इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स नेगेटिव 170। हमको वापस 50,000 का बैलेंस चाहिए। फ्रेंड्स देखो ये नेगेटिव 170 आता है न कि नेगेटिव 190। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस चेंज हो गया। ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया 50,000 हो गया। पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था 30,000 था। क्यों? क्योंकि जनवरी मंथ में अभी हमने बोरो किया है 20,000। इसकी वजह से ये जो क्लोजिंग बैलेंस 190 था ना वो अभी हो गया 170। सो हमको क्या करना पड़ेगा वापस बोरो करना पड़ेगा। दिस टाइम वी हैव टू बोरो 2,20,000, यानी दैट इज जितना भी शॉर्टफॉल है 170 का वो और 50,000 का बैलेंस रखने के लिए हम लोग टोटल 220 बोरो करेंगे। दैट इज द बोरोइंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। द क्लोजिंग ऑफ फेब्रुवरी इज ओपनिंग ऑफ मार्च। फिर हम लोग क्या लिखेंगे मार्च का रिसीप्ट। मार्च का रिसीप्ट कितना है 130 760 दैट कम्स टू 890। 130 प्लस 700 प्लस 60 इन तीनों का टोटल। अच्छा फिर हम लोग क्या लिखेंगे पेमेंट्स कितना है 390 प्लस 160 प्लस 100 यानी कि 650। सो 390 प्लस 160 प्लस 100 ऐसा करके हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सो प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। 50 प्लस 890 माइनस 650 तो बैलेंस आता है 2,90,000। क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 तो रीपेमेंट कितना करेंगे रीपेमेंट करेंगे 2,40,000। दैट इज व्हाट्स द रीपेमेंट दैट वी विल हैव। और ये क्या हो गया वापस बैलेंसिंग फिगर हो गया। दिस इज द वे वी हैव द बैलेंसिंग फिगर फॉर द रीपेमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च। इस हिसाब से हमको बोरो या रीपे का कैलकुलेशन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई इंसिडेंटली ऐसा हो रहा है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जितना हमने बोरो किया एग्जैक्टली उतना ही रीपे आया। हमेशा ऐसा नहीं होगा। इट मे हैपन दैट द रीपेमेंट इज मोर देन द बोरोइंग और रीपेमेंट इज लेस देन द बोरोइंग। इफ द रीपेमेंट इज मोर देन द बोरोइंग देन इन दैट केस वी कैन से ये जो हमारा एग्जिस्टिंग बैंक लोन है उसको हम लोग रीपे करेंगे। ऐसा हमको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर अ प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट फॉर 31st ऑफ मार्च। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है हमको लेट से आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना है 31st ऑफ मार्च का। हमको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखा है वो 31st ऑफ दिसंबर का दे रखा है। हमको ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं ये 3 महीने के और उसके ऊपर से हमको 31st ऑफ मार्च का बैलेंस शीट बनाना है। तो लेट अस हैव अ डिस्कशन कि वो कैसे बनेगा। बिफोर दैट आई वांट समबडी ऑफ यू टू टेल मी कि 31st ऑफ मार्च का हमारा क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट 31st ऑफ मार्च क्रेडिटर्स वैल्यू विल बी 4,50,000। कैसे है 4,50,000 वो डिस्कस करते हैं।
देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट से वी हैव द एवरेज पेमेंट पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो हमारा लाइक जनवरी मंथ का परचेस है उसका पेमेंट किया जाता है फरवरी में, फरवरी का मार्च में, और जो भी हमारा मार्च मंथ का परचेस होगा ना वो 31 ऑफ मार्च को बाकी होगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट से ये हमारा मार्च मंथ का परचेस है जिसका पेमेंट हमारा 31 ऑफ मार्च को बाकी होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स एज ऑन 31 ऑफ मार्च। अच्छा, दूसरा आप लोग लॉजिकली ऐसा समझ सकते हो कि क्वेश्चन में जो हमको यहाँ पे क्रेडिटर्स का वैल्यू दे रखा है 3,60,000 रुपए, वो और कुछ नहीं है पर हमारा दिसंबर मंथ का परचेज ही है। देखो दिसंबर मंथ का परचेज कितना है, 3,60,000, जो हमारा 31 ऑफ दिसंबर को बाकी होगा एंड दैट इज शोन इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स जिसको हमने जनवरी में पे किया। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है बैंक लोन का, ये ओपनिंग है 400 प्लस हमने बोरो किया कौन से मंथ में, जनवरी में, कौन से मंथ में, फरवरी में, फिर रीपे किया कौन से मंथ में, मार्च में। सो कोइंसिडेंटली जितना ओपनिंग है वही का वही क्लोजिंग हो गया। हमेशा ऐसा होगा नहीं, ये वैल्यू कुछ और भी हो सकता है अगर बोरोइंग एंड रीपेमेंट सेम अमाउंट का नहीं है तो। अक्रूवल उसके पेमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम लोग एज इट इज ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी 2,12,000 रुपए। लॉन्ग टर्म डेट उसके रीपेमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको अगेन एज इट इज ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट इज लाइक 4,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन नो एडजस्टमेंट, उसको एज इट इज ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस से रखा है 14,39,000। ये 3 महीने में अगर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट को ऐड करो टू कंप्यूट द क्लोजिंग बैलेंस, अगर लॉस है तो उसको डिडक्ट करो इन ऑर्डर टू कंप्यूट द क्लोजिंग बैलेंस। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स। असेट साइड का डिस्कशन करते हैं। हमको डेटा से रखा है 5,30,000। फ्रेंड्स जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑफ कोर्स इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर, पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि जनवरी मंथ का ये जो कलेक्शन है वो जनवरी मंथ के पहले के सेल्स का है, फरवरी का ये जो कलेक्शन है वो अगेन जनवरी के पहले के सेल्स का है। अगेन दिस इज व्हाट द कलेक्शन फॉर द सेल्स दैट वी मेड बिफोर जनवरी। नाउ यूज योर कैलकुलेटर, 420 प्लस 50 प्लस 60 कितना आया, 5,30,000। तो ये हमको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ये हमको दे रखा है यहाँ का ओपनिंग डेटर्स। तो ये जो 5,30,000 रुपए हमारे कलेक्ट करने के बाकी थे वो हमने इस हिसाब से कलेक्शन हो गया। तो वापस हमको क्लोजिंग डेटर्स का क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैश बैलेंस ओपनिंग है ये, तो हमको क्लोजिंग कैश बैलेंस चाहिए 31 ऑफ मार्च का। यू कैन सी फ्रेंड्स हमने दो कैश बजट बनाए, ये विदाउट बोरोइंग एडजस्टमेंट वाला और ये बोरोइंग के एडजस्टमेंट के बाद। यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आंसर है 50,000, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आंसर है वापस 50,000, दोनों सेम ही है। तो मुझे कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि मेरे को 31 ऑफ मार्च का बैलेंस क्या लेने का। पर अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग होता है फ्रेंड्स तो हमको क्या करने का फ्रेंड्स, हमको ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर लेने का। कैसे समझने का फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। तो जब हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन दोनों का इफेक्ट थर्ड क्वेश्चन में लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको क्लोजिंग बैलेंस कितना लेने का, 50,000 रुपए, जो हमने सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट से व्हाइल डूइंग द थर्ड क्वेश्चन हमको फर्स्ट और सेकेंड दोनों का एडजस्टमेंट ध्यान में लेने का। इसलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमने बैंक लोन क्या किया, ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद लिया। तो चलो कैश बैलेंस तो आ गया 50,000 रुपए, डेटर्स के लिए वर्किंग नोट बनाया जाएगा। स्टॉक ये ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए वर्किंग नोट बनाया जाएगा। एज फार एज द फिक्स एसेट इज कंसर्न, फिक्स एसेट को एज इट इज ही लिखेंगे, व्हाई, बिकॉज उसमें भी कोई भी चेंज नहीं है।
दैट इज द वे वी आर सपोज टू प्रिपेयर 3 वर्किंग नोट्स। पहला वर्किंग नोट हम लोग किसका बनाएंगे, लेट अस से दैट से हम लोग सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट डेटर्स का, उसके बाद स्टॉक का, उसके बाद प्रॉफिट का, और फिर हमारा ये छोटा सा बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा। सो लेट अस आंसर द क्वेश्चन। Projected balance sheet of Messrs. Maya Limited as on 31st of March. So let us start with the answer. It is liability side of the balance sheet, asset side of the balance sheet. सबसे पहले शुरू करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से। इक्विटी शेयर कैपिटल हमको दे रखा है 1,00,000 रुपए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका ओपनिंग बैलेंस हमको क्वेश्चन में दे रखा है 1439। ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स अगर प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉस है तो डिडक्ट करो। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट 4,50,000, कोई चेंज नहीं होगा। बैंक लोन ओपनिंग 400 है, प्लस हमने 20 बोरो किया जनवरी में, 220 बोरो किया फरवरी में, 240 का रीपेमेंट किया, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ गया 400 वापस। उसके बाद अक्रूवल, अक्रूवल का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट इज 2,12,000। उसके बाद हमको दे रखा है क्रेडिटर्स, दैट इज अकाउंट्स पेबल 4,50,000 जैसे हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिख रहा हूँ मार्च, यानी मार्च मंथ में जो हमने खरीदा ना वो हमारा क्रेडिटर्स। असेट साइड हम लोग लिखेंगे नेट फिक्स असेट, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 1,00,000, दैट इज 18,36,000। उसके बाद हम लोग स्टॉक लिखेंगे जिसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। डेटर्स लिखेंगे, अगेन उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ओपनिंग डेटर्स था वो तो कलेक्ट हो चुका है ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स। वैसे ही हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी हमने कंज्यूम कर दिया होगा। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस है 50,000 रुपए, जो हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से लेके आए। दैट इज द वे वी आर सपोज्ड टू से प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे डेटर्स का वैल्यू से। तो पहला वर्किंग नोट जिसमें हम लोग डेटर्स का कैलकुलेशन करेंगे। सो नेक्स्ट इज, लेट अस राइट डाउन आंसर। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of debtors. I want you to calculate the answer of the debtors and put your answer in the chat box. So let us start. हम लोग शुरू करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस हमको क्वेश्चन में दे रखा है डेटर्स का, इट इज 5,30,000। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स, क्योंकि जो भी सेल्स होगा दैट इज ऑफ द क्रेडिट बेसिस। तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। जनवरी मंथ का सेल्स है हमारा 600, फरवरी का है 1,000 और मार्च का है 650। So 600 plus 1,000 plus 650, that comes to 2,250। तो डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया, 2,780। वी अंडरस्टैंड दैट हमारा जो भी कलेक्शन होगा दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। सो बाय कैश बैंक, वी अंडरस्टैंड दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी हमारा कलेक्शन है 590, फरवरी 680 और मार्च 890। ये तीनों तीन जो कलेक्शन है दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। सो 590
प्लस 680 प्लस 890, दैट इज 2160, 2780 माइनस 2160, ऐसा करके हमको क्लोजिंग बैलेंस का दैट इज वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट क्लोजिंग बैलेंस इज 620। ये हमारा डेटर्स कैलकुलेशन का फर्स्ट मेथड हुआ, जिसमें वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, पर जो हम लोग स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं वैसे हमको क्या करना है, डेटर्स कन्वर्ट बनाना है। इसके अलावा एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको समझाता हूँ, आप वो शॉर्टकट मेथड से आंसर करोगे तो भी चलेगा। तो शॉर्टकट मेथड कुछ ऐसा है, लिसन केयरफुली। उसमें कॉलम नंबर 1 है मंथ, कॉलम नंबर 2 है सेल्स, कॉलम नंबर 3 है आउटस्टैंडिंग परसेंटेज, और लास्ट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ऐसा करके कॉलम्स होगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सेल्स जनवरी का कितना है, 600, फरवरी का 1000 और मार्च का 650। वी अंडरस्टैंड दैट जो भी हमारा सेल्स है उसमें से जितना सेल्स 31 ऑफ मार्च तक हमारा कलेक्ट नहीं हुआ है, दैट इज द डेटर्स। तो हमको क्या करने का फ्रेंड्स, सोचने का, ये जो 600 है उसका 20% जनवरी में, 70% फरवरी में और 10% मार्च में मिल चुका है। तो बाकी क्या है, बाकी कुछ नहीं है। ये 1000, उसका 20% फरवरी में, 70% मार्च में, और बाकी कितना होगा, 10% बाकी होगा। So it is 1000 into 10%, that comes to 100। मार्च मंथ का जो भी सेल्स है उसका 20% मार्च में मिल गया, यानी बाकी कितना हुआ होगा 80%। तो 650 into 80%, that comes to 520। So that is the way you can make the calculation that say what is the outstanding, the total outstanding is 6,20,000। ऐसा अगर आप वर्किंग करोगे तो भी वो वैलिड है, एक्सेप्टेबल एट एग्जामिनेशन। प्लीज राइट डाउन आंसर। ना फ्रेंड्स, अभी हमको नेक्स्ट वर्किंग नोट करना है जो कि है स्टॉक का। ना स्टॉक का जो वर्किंग है ना फ्रेंड्स, उसके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अजम्पशन इंस्टीट्यूट ने किया है, क्या वो मैं आपको समझाता हूं। सो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक as on 31st of March। ओके, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। कॉलम नंबर 1 इज वंस अगेन पर्टिकुलर्स, कॉलम नंबर 2 इज अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 5,45,000। फिर हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड टू परचेस, जो हमने स्टॉक खरीदा है वो डेबिट साइड आएगा। आप देख सकते हो डेट से हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में परचेस का कैलकुलेशन करके रखा। सो हियर इज द परचेस, देखो ये परचेस का कैलकुलेशन है। तो जनवरी का परचेस कितना है 600, फरवरी का कितना है 390 और मार्च का कितना है 450। सो टोटल परचेस से 1440 वो डेबिट साइड आ जाएगा। इंपॉर्टेंटली क्रेडिट साइड क्या आएगा, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन आएगा। कंजम्पशन कितना है वो अभी मैं आपको समझाता हूं। आप अगर क्वेश्चन गौर से पढ़ो फ्रेंड्स, तो कंजम्पशन के बारे में एज सच कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने ऐसा अज्यूम किया दैट 60% ऑफ द सेल्स इज द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने ऐसा अज्यूम किया दैट 60% ऑफ द सेल्स इज द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी उन्होंने ऐसा एक आर्ग्यूमेंट रखा है इन द सजेस्टेड आंसर कि जो हम लोग अगले महीने में कंज्यूम करने वाले हैं वो हम लोग प्रीसीडिंग मंथ में बाय करते हैं। So this is the raw material that I am going to consume in the month of December, so I purchase in November। जो रॉ मटेरियल हम लोग
जनवरी में कंज्यूम करने वाले हैं वो हम लोग दिसंबर में बाय करते हैं. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. So this is the way. So we are supposed to consider the consumption of January as 360, February as 600, and for March it is 390. That is the way the consumption will be shown on the credit side. और उसके बाद we will have the closing stock as the balancing figure. So we will be having on the credit side by consumption 360 plus 600 plus 390 और परचेज है 600 plus 390 plus 450. So total purchase आता है 1440, कंजम्पशन 360 plus 600 plus 390 यानी 1350. डेबिट सेट का टोटल आया 545 प्लस 1440 यानी 1985. दिस इज अगेन 1985 माइनस 1350 तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 635. ऐसा करके क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन होगा. So this is the closing stock that we have on 31st of March. Now closing stock फाइंड करने का एक दूसरा शॉर्टकट तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूं. तो आप एग्जामिनेशन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. देखो जैसे कि हमने समझा है that say every month we purchase the raw material equal to the requirement of the subsequent month. तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक on 31st of March is equal to purchase of March. यानी हमने क्या किया होगा कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ का सेल्स है जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है 7.5 लाख अप्रैल का, उसका 60% यानी हमारा कंजम्पशन कितना होने वाला है 4.5 लाख, उस हिसाब से हमने मार्च में खरीदा होगा. तो वो हमारा स्टॉक होना चाहिए. उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग ऐसा समझ सकते हैं प्लस आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 1st of जनवरी को हमारा स्टॉक है 545. एक्चुअली जनवरी का जो हमारा सेल्स है वो है 600, तो हमको स्टॉक चाहिए था कितना 360, उसका 60%. यानी हमारे पास क्या था 1st of जनवरी को एक्सेस स्टॉक था, क्योंकि जब कंपनी ने अपना पॉलिसी बनाया होगा कि हमको नेक्स्ट मंथ का रिक्वायरमेंट ही इस महीने बाय करना है, तभी हमारे पास कुछ एक्सेस स्टॉक होगा, जो एक्सेस स्टॉक हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. तो क्या करेंगे प्लस एक्सेस स्टॉक. एक्सेस स्टॉक क्या होगा 545 माइनस 360. सो 545 माइनस 360 यानी हमारे पास जो 185 को जो एक्सेस स्टॉक होगा वो प्लस परचेस ऑफ मार्च, ऐसा करके हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं मार्च का. दैट इज 6,35,000. राइट ऑन दिस आंसर. ये जो थोड़ा शॉर्टकट मेथड होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है. अगर उसमें आपका थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है देन इन दैट केस आप ये डिटेल वर्किंग तो हमेशा कर ही सकते हो. सो वी आर हैविंग सो द क्लोजिंग स्टॉक that is as per working note number 2 it is 6,35,000. अभी हमको और एक वर्किंग नोट बनाना है that is profit or loss during this 3 months. So that on heading calculation of the profit or loss during 1st of January to 31st of March. चलो 3 महीने का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स.